Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's a matter of great pleasure and honor for me to talk with the section head in charge, Ma'am Farina Hamad. She is very successful in delivering the results. Ma'am Farina is an excellent listener. She is always focused and attentive. She always prepared to deal with whatever situation may arise. She always disarmed most difficult situations simply by showing care and willingness to hear them out. It's a very good opportunity for us that I want to discuss what is the concept of guidance from Ma'am Farina. Assalamu alaikum. Thank you, Saima, for such nice and kind words for me. May Allah make me do whatever you think about me. And now talking about guidance, guidance is basically bringing out the best in someone. So in an individual, whatever the potentials they have, through guidance we make their potential come out and do them perform at their fullest. So this is what is my concept of guidance, and this is what I mostly do with my teachers, with my students. I try to make them discover their own talents and do up to the best of their potential through guidance. Yeah, ma'am, it's very nice. It's very good that it should be known to all the teachers and apply for the successful life. Not teachers, but all the human beings, they need guidance. It's very nice, ma'am. Yes, exactly. Every individual needs Yeah. guidance at any step. May it be a Yes. child, may it be a daughter, may it be a son, may it be an employee, may it be a student. So they need guidance at every step, and that guidance should come from best leadership, from anyone who has wisdom, who has enough wisdom, someone senior, someone who is capable, who has gone through such places in his life. Yes, ma'am. It's a very good, very nice point you told us. मैम, जिस तरह से बच्चे क्लासेस में आते हैं तो उनको हम कैसे तैयार करें कि वो अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें और किसी ऐसी हाइजीन हो कि बच्चे खुद ब खुद रेडी होना पसंद करें, और उनको कैसे पता चलना चाहिए कि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको. First of all, we need to make them understand the importance of cleanliness. इसीलिए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है. तो ये कॉन्सेप्ट एक छोटे बच्चे को जब आप बताते हैं तो उसको उस तरह से नहीं समझ आएगा, वो नहीं ले पाएगा निस्फ़ ईमान कैसे हो जाता है. सो बिकॉज everything should be clean. What we have started in our school, we have a theme in every month we have a theme जिसमें कि हम उनकी जो पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उनको हम कुछ थीम्स रखते हैं. लाइक वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्रीवियस मंथ वी हैड केयरिंग फॉर अदर्स, इन दिस मंथ वी हैव द थीम फॉर क्लीनलीनेस. सो हमने उनको 4 चीज़ें बताई. वी मस्ट क्लीन कीप आवर सेल्व्स क्लीन, वी मस्ट कीप आवर थिंग्स क्लीन, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, and we must keep our heart and mind clean. So slowly, and it's not important कि आपको इसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा. In daily at the start of in the morning assembly, just we take out these 5 minutes, we have a theme, we just tell them, we must just remind them. So reminding them, refreshing them the idea of cleanliness, the importance of cleanliness, how it helps them in their life, उनके अंदर ये एक आदत बना देगा. तो इसको हमें उनकी एक आदत बनाना है, ना कि एक कॉन्सेप्ट बताना है. ये उनकी आदत होनी चाहिए. तो उनको थोड़ा क्योंकि टीचर्स डेली उनसे मिलती हैं, तो हम रोज़ाना सुबह का आगाज़ इस बात से करें कि बच्चों आप सब ने सारा दिन ध्यान रखना है आप खुद साफ़ रहें, आपके कपड़े साफ़ रहें, आपकी सराउंडिंग साफ़ रहें, आपके डेस्क साफ़ रहें, आपका स्कूल साफ़ रहे. तो आहिस्ता इट कम्स अप, स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. अपना दिल साफ़ रखना, फील गुड फॉर अदर्स, अपना माइंड साफ़ रखना, थिंक गुड अबाउट अदर्स. तो ये सब चीज़ें आहिस्ता उनके अंदर आप थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे तो मेक इट अ हैबिट. बिल्कुल. और मैम, एक जो इशू बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, उनकी फीलिंग्स का हम कैसे ख्याल रखें कि वो हर्ट ना हो. बच्चे हर्ट ना हो. जी बिल्कुल, बच्चे हर्ट नहीं हो.
आपस में भी कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से भी बाज़-औक़ात होता है, फ्रेंड्स की तरफ से भी होता है। Okay. इनकी फीलिंग्स को कैसे हम दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बीइंग कंपैशनेट। सो हमें उनको थोड़ा कंपैशन सिखाने की ज़रूरत है। They must know how it feels when they put themselves in others' situation, in others' shoes. For example, अगर मैं किसी को कोई बात कह के किसी को मैंने कोई बात की और मुझे एहसास ही नहीं कि मेरी इस बात से वो हर्ट हो रहा है, तो आई एम नॉट बीइंग कंपैशनेट। सो फर्स्ट दे नीड टू फील द सेम हाउ अदर्स फील। तो बच्चों को ये चीज़ सिखाना शुरू से ही बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जैसा यू मस्ट नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग। किसी को आप पिंच करें तो उसको दर्द होता है, इसी तरह किसी को आप कोई लाउड डांट दें तो उसको भी हर्ट हो जाता है। सो दे नीड टू नो, नीड टू बी कंपैशनेट। थैंक यू मैम, इट्स वेरी नाइस। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि गाइडेंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैम क्या हमें काउंसलिंग के थ्रू भी कुछ हेल्प मिल सकती है बच्चों को हर चीज़ को? Counseling is actually at certain stages it's a formal type of guidance. काउंसलिंग आपको किसी जैसे करियर काउंसलिंग बच्चों को जब हमारे ग्रेड जब कॉलेज में उन्हें जाना होता है, जब कोई फील्ड करते तो उसको करियर काउंसलिंग हम करते हैं। समटाइम्स साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है, दैट इज़ एट अ स्टेज पर सवेयर कोई हैबिट्स आ जाए, कोई सवेयर प्रॉब्लम किसी में आ जाए। सो देन इट्स गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड ऑल द टाइम and it is for everyone requires guidance every time they require guidance at any step of their life they require guidance. Counseling थोड़ा उसका फॉर्मल और स्पेसिफिक स्टेज चली जाती है, तो काउंसलिंग भी रिक्वायर्ड होती है एट सम स्टेज व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो वो आप खास किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू आप काउंसलिंग लें। थैंक यू सो मच मैम, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आज बहुत सी चीज़ों का पता चला, गाइडेंस काउंसलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। हर पीरियड से पहले, हर ज़िंदगी के आगाज़ से पहले गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एज अ एजुकेशनिस्ट मैम फारीना ने बहुत अच्छी हमें बातें बताई हैं और इनकी वजह से आज हमें बहुत से पॉइंट्स पता चले हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा और कीमती टाइम हमें दिया और हमारी तरफ से टोकन ऑफ थैंक्स No need for that.